Hello students, welcome to my YouTube channel Bachcha Wala Maths. Today we'll do class 9 general maths chapter 8 quadrilaterals. So let's start the video. As you can see, some MCQs on your display. These MCQs are very important for your upcoming half yearly exams. Okay, so the first question is the bisector of the angle of a parallelogram forms a dash. So remember that this is a property and many proofs are there in your textbook questions that if a parallelogram if you are given a parallelogram, suppose like this, suppose A B C and D, and suppose you have the bisector of this angle A, then bisector of this angle B, then angle C and angle D, these are joined, then you will obtain a quadrilateral out here and this will form a rectangle. Remember that. Okay, the question you need to understand that what is being asked. Again I am repeating that suppose if you draw a parallelogram out here, suppose A B C and D, and the bisector of angle D, then angle C, then angle A and angle B are joined, then you will obtain a quadrilateral out in the middle and this will be a rectangle. Okay, so the correct option will be option number B, that is rectangle. The next question, the angle of a quadrilaterals are in the ratio 3:4:5:6 respectively. The angles are, so very easy questions, already know the angle sum property of a quadrilateral. So here you will write, let the four angles be 3x, then 4x plus 5x plus 6x, and the sum of this will be 360. You know that angle sum property of a quadrilateral is 360, and if you add all this, 3 plus 4 7 plus 5 12 plus 6 18, so you will get 18x equals to 360. That means x equals to 360 upon 18, that is you will get the value of x as 20. So if you put the value 20 in the all the angles, you will get the four different angles. Like suppose you will get, that is 3x, that means 3 into 20, that you will get 60 degree. The second one you will get 4 into 20, that is 80 degree. Then third angle will be 5 into 20, that is 100 degree, and the fourth angle is 6 into 20 is 120 degree. So you find out the option 60, then 80, 100 and 120. So 60, 80, 100 and 120, option number A. So this is the correct option. Okay, next question, question number 3. In a triangle ABC, PQR are the midpoint of BC, AC and AB respectively. So if you draw the figure, you will get a broader picture of this. So suppose I draw a triangle out here ABC. I'll name here also A, B and C. Then PQR are the midpoint of BC, then AC and AB respectively. If you join these three, then you are being given that AC is 21. Oh, this is 21. Then BC 29. So this is 29. Then you are given 30. AB is 30. This is 30. Okay, and you are required to find the perimeter of quadrilateral ARPQ. Okay, so ARPQ will write in raw. So ARPQ will be this one, ARPQ. So already know the midpoint theorem of a triangle. Suppose if I take this triangle, this triangle ABC, and these two are the midpoint, it means R and P are the midpoint. So I can write that is PR is parallel to AC as well as PR is half of AC. So if this is 21, so this will be half of 21, that is 10.5. So this is 10.5. I got 10.5 out here. So if this is 10.5, this opposite side will also be 10.5, because since it is the midpoint. Okay, then same to same, if I take this P and R as midpoint, if I take P and R as midpoint, so these are midpoint, then this will be parallel to this AB, as well as this PQ will be half of AB. So if half of AB is 30, so this will be 15, and this will also be 15. So you add it, you will get 15 plus 15 plus 10.5 plus 10.5. So in broader sense, 30 plus 21.
so it will be 51. Okay, so hope you understood. So you see option 51 is there, so 51 option number C, so it will be the correct option. Okay, once again I'll tell you, see, this is a triangle A, B and C, and this is P, this is Q and this is R. Okay, these are joined. You are be given different sides. AC is given as 21, this is 21, and this one is given as 30, this side is 30. Okay, so just you use the midpoint theorem. Midpoint theorem, if you know that suppose this, then this are, this P and Q are the midpoint of this two BC and AC, so this PQ will be half of AB. Okay, so half of AB means what? This is 30, so this will be 15. Perimeter means you have to find the area of the length of boundaries, right? So this is 15, and this is, if this is 15, this that is half of AB, so this AR will also 15 because R is the midpoint and this whole is 30, so this is 15, so this is 15. Okay, so 15 plus 15, these two sides, as well as if I consider P and R are the midpoint of BC and AB, so this PR will be half of AC. So this AC is 21, so it will be 10.5, half of 21. If this is 10.5, this AQ will also 10.5, then just add it. This is 15, 10.5, 15 and 10.5. It means 10.5, 10.5 is 21, and this is 15 plus 15 is 30. That means total will get 51. Okay, let's do the next question. The next question is the quadrilateral formed by joining the midpoint of the side of a triangle taken in order is a rectangle. So remember that two questions can arise. दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें. अगर क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट ज्वाइन करके अगर रेक्टेंगल बनना है तो उसका जो डायगोनल है वो राइट एंगल होना चाहिए. रिमेंबर, तो हमेशा याद रखना है कि अगर कभी भी कोई क्वाड्रिलेटरल को अगर रेक्टेंगल बनना है बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट, तो सपोज मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है, ए बी सी डी, और मैंने सपोज पी क्यू और आर एंड एस ये मिड पॉइंट है, इसको मैंने ज्वाइन कर, अगर इसको रेक्टेंगल बोल रहा है तो रेक्टेंगल में अगर होगा तो इसका जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, और अगर बाई चांस इसने स्क्वायर बोला तो याद रखना कि डायगोनल इक्वल भी होना चाहिए और 90 डिग्री भी होना चाहिए. तो ये क्वेश्चन में भी मैंने कवर किया, तो मैं पहले ही बता देता हूँ. वेट, तो यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ का ऑप्शन होगा तुम्हारा डायगोनल ऑफ, ये रेक्टेंगल है ना, तो डायगोनल क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर या तो राइट एंगल होना चाहिए. ठीक है, PQRS. और एक स्क्वायर का भी क्वेश्चन है, मैंने सर नीचे दे दिया है मिस्टेक, तो यहाँ पे मैं भी बता देता हूँ. नंबर हाँ ये वाला, द क्वाड्रिलेटरल नंबर 13 देख लो. क्वेश्चन नंबर 13 बोले द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय joining the midpoint of the quadrilateral ABCD in order is a square if, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, ABCD are rhombus, diagonal ABCD are equal, diagonal ABCD are equal and perpendicular, and diagonal ABCD are perpendicular. तो इसमें diagonal ABCD are equal and perpendicular होगा. तो स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर एंड इक्वल दोनों डायगोनल, और रेक्टेंगल के लिए सिर्फ परपेंडिकुलर होगा तो चलेगा. ठीक है, ये दोनों याद रखना. ठीक है, देन चलो फिर से स्टार्टिंग से करते हैं हम. स्टार्टिंग मतलब मैंने कहाँ पे छोड़ा था? ये वाला क्वेश्चन था नंबर your question number, it was question number 4. Okay, so then let us move to the question number 5. The diagonal of a rectangle is inclined to one another at 25 degree. Then acute angle between the diagonals are is, यहाँ पे आंसर मैंने 50 पहले से लिख के रखा है, बट मैं तुमको बता देता हूँ होता क्या है. यहाँ पे सपोज ये एक रेक्टेंगल है, सपोज मैंने इसका नाम दे दिया A B C एंड D. इसका ना एक डायगोनल है ना, इंक्लाइन कर रहा है यहाँ पे 25 डिग्री पे. ठीक है, तो ये 25 डिग्री, सोचो इंक्लाइन मतलब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है. ठीक है, और तो पूछ रहा है तुमको कि द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स. तो सपोज अगर तुमको पता है अगर ये 25 है तो ये भी 25 डिग्री होगा, बिकॉज तुमको पता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है और डायगोनल रेक्टेंगल का इक्वल होता है. रेक्टेंगल और डायगोनल इक्वल का मतलब है कि ये दोनों साइड, यानी कि सपोज ये O है तो ये वाला और ये वाला साइड सेम होगा. तो अगर ये 25 हो तो एंगल अपोजिट इक्वल साइड पर ट्रायंगल और इक्वल, तो ये भी 25 होगा. अब तुम एंगल सम पड़ी करो ये वाला ट्रायंगल में AOB में, अगर AOB में करता है तो ये 25 और ये वाला एंगल 25, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 25 प्लस 25, ये हो गया तुम्हारा 50, यानी कि 130. ठीक है, तो हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा 130. बट तुमको एक्यूट एंगल निकालने बोला था. एक्यूट एंगल मतलब दो डायगोनल के बीच में ये वाला निकालना है. तो तुम खुद पता है कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, ये 180 लीनियर पेयर बनेगा. ठीक है, तो 180 से 130 माइनस कर देते क्या होगा? 50. तो एंगल जो एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स होगा ये 50, याद रखना. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर
ऑप्शन है कि नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा तुम्हारा फिफ्टी, ठीक है, ऑप्शन बी। देन ए बी सी डी रोम्बस सच दैट, ए सी बी का भी ये भी बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक है, तो एक भी रोम्बस बना दो। तो ये रोम्बस बनानी, वेट, एक रोम्बस बना देता हूँ। ये रोम्बस है सपोज ए बी सी डी, ठीक है, और बोल रहा है ए सी बी 40 डिग्री है, तो ए सी बी ये 40 है, तो तुमको निकालना है ए डी बी, तो ए डी बी ये निकालना है तुमको। तो तुमको पता है इसका जो डायगनल, कोई भी ट्रायंगल जो रोम्बस का डायगनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, तो ये चारों एंगल 90 डिग्री है, और इसका ऑल्टरनेट एंगल है ये वाला, ठीक है। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये 40 होगा, ठीक है। तो ये अगर 40 हुआ और ये 90 हुआ, ये एंगल 90 है, तो ये वाला ट्रायंगल में देखो तुमको ये वाला एंगल ही तो चाहिए, ये वाला, तो ये वाला एंगल चाहिए, तो तुम क्या करेगा, ये 40 और ये 90, तो 40 प्लस 90 प्लस ये वाला एंगल कितना होगा 180, 40 प्लस 90 होता है 130, तो 130 अगर तुम 180 से माइनस करते कितना होगा, तो 50। तो ये आंसर क्या होगा इसका 50। ओके, तो देखो ऑप्शन है क्या इसमें, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट यू राइट 50 एज आंसर। ओके, then the if angle A, B, C and D of a quadrilateral ABCD taken in order and the ratio 3, 7, 6:4, then ABCD is a dress। तो देखो यहाँ पे अगर तुम इसके पहले एंगल सम प्रॉपर्टी कर लो, तो एंगल सम प्रॉपर्टी करेगा तो तुम लेट द 4 एंगल्स भी 3x 7x 6x 4x, तो 3 + 7 10 + 6 16 + 4 20, 20x इक्वल टू हो जाएगा 360, 20x इक्वल टू 360, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 360/20, तो 60/20 का मतलब है 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 18 से अगर तुम निकालता है ये तीनों एंगल, तो ये तीनों एंगल तुम्हारा आएगा, एक तो 3x है, तो 3x का मतलब 3 × 18 54, एक है तुम्हारा 7x, तो 7 × 18 18 7 जा तुम्हारा 7 जा 56, 5 7 जा 7 + 126, फिर तुम्हारा 6, एक है तुम्हारा 54, एक का 126, थर्ड एंगल तुम्हारा 6 × 18, 18 6 जा आई थिंक 108, 6 8 जा 48, 6 4 6 1 6 4 108, yes, third angle is 108 and the fourth angle is 4 × 18, that is 18 4 जा I think 72, 8 4 से 8 जा 32, 3 yes 72। तो यहाँ पे देखो कोई भी एंगल कुछ इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कोई एंगल इक्वल नहीं आ रहा है तो इसलिए ट्रेपेजियम बोल देगा तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डेट इज ट्रेपेजियम। वरना अगर कोई भी रोम्बस होता या तो पैरेललोग्राम होता तो उसका कोई भी एडिशन साइड या तो ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम होगा। कुछ अगर इक्वल नहीं है तो ट्रेपेजियम पे जाना, ठीक है। नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इज अ, तो तुमको पता है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम के कैटेगरी में आती है, बिकॉज द सेकंड साइड अगर वो पैरेलल हो गया तो वो तो पैरेललोग्राम बन जाएगा और वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। बट अगर सिर्फ यही बोल दिया कि सिर्फ एक साइड ही ऑपोजिट साइड ही पैरेलल है तो द सेकंड साइड नॉन पैरेलल, हम लोग एज्यूम करके इसका आंसर क्या लिखेगा ट्रेपेजियम। तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा तुम्हारा 1। ओके, फिर द कॉन्जुगेटिव एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर, तो ये पैरेललोग्राम, सपोज ये पैरेललोग्राम है, कॉन्जुगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, सपोज ये ए, ये बी, ये सी और डी, एडिशन एंगल भी बोलता है कॉन्जुगेटिव एंगल को, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्जुगेटिव एंगल है, तो तुमको पता है कि दो एडिशन एंगल का सम या दो कॉन्जुगेटिव एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन अ पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर आर इक्वल देन इट इज अ, तो इफ बोल रहा है इफ इन अ पैरेललोग्राम इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल, तो यू जस्ट रिमेंबर दैट अगर कोई भी पैरेललोग्राम में उसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है और इक्वल भी है तो वो रेक्टेंगल होगा मोस्ट प्रोबेबली, याद रखना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा 2। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो बोल रहा है एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, तो ये तो ट्रू है, एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। ओके, नेक्स्ट, एवरी रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये भी ट्रू है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइडेड फिगर और सारा रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल होता है। देन एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम, ये ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा कि एवरी पैरेललोग्राम नेसेसरली ट्रेपेजियम नहीं होगा अभी, ठीक है। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पैरेललोग्राम, तो देखो पढ़ लेते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये ट्रू, ये तो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का,
ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। देन ऑपोजिट एंगल्स बाइसेक्ट बाय द डायगोनल, नॉट नेसेसरी, याद रखना ये जो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है ये नॉट नेसेसरी है, तो इसका बोला ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। देन द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर इज अ स्क्वायर, मैंने पहले बताया था अगर रेक्टेंगल हुआ तो क्या होगा, डायगोनल से परपेंडिकुलर होना चाहिए, और स्क्वायर होगा तो क्या होगा, डायगोनल्स इक्वल एज वेल एज परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा 3। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल होता है तो क्या होता है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, रेक्टेंगल के लिए ऑप्शन नंबर 4 एंड स्क्वायर के लिए ऑप्शन नंबर 3, इक्वल एंड परपेंडिकुलर दोनों, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ in a parallelogram its diagonal bisect each other at right angle then the n are equal then it is a, ये शायद मैंने ऊपर दिया हुआ है, ठीक है ना, एक पैरेललोग्राम है अगर उसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल एन आर इक्वल देन वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है। देन दिस ऑप्शन नंबर 2, ओके ओके, देन थैंक यू।